welcome you all at Object Oriented Programming. Now, in Object Oriented Programming, today I am going to explain one program. That program illustrates the use of object as function argument and returning object. Right? In previous video, we had discussed one program, and today I am going to discuss another program. In this program, there is one class time, right? In that, variables are hours and minute, and there are three public member function. First one is get time, that accept value for hours and minute variable. Second function is display function, that display hours and minute of particular object. And third function is sum function, that add to time object. It means it add to hours and to minute, right? And it display total number of hours and total number of minutes, right? And yes, sum function also return object variable, class variable, right? Now let us start the program. First one, we have to write header file, include iostream.h and has include conio.h. Now let us take one class time. In that, two private variable, integer r and integer minute, that store hour and minute of particular time object. Now let us define function, member function as public. First one is void get data. In that, two variable h and integer m, hour and minute, right? In that, like r equal to h and minute equal to m, right? Now यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि r और minute सी इन सी आउट थ्रू एक्सेप्ट करें. Now let us complete the class here and just write main function. हम साथ में ही करते हैं, like function को कॉल करेंगे. Now first of all, clr ser for clearing screen. Now object of time, first of all we have to create object of time class like t1. Now t1 dot get data function को कॉल करेंगे. Now for example 5 hours and 40 minute. Now यहाँ पे 5 जो है वो h वेरिएबल में वैल्यू जाएगी और 40 जो है वो m वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, राइट? hours एंड मिनट. सो आवर्स में 5 आ जाएगा और मिनट में 40 आ जाएगा, राइट? नाउ राइट अनदर फंक्शन लाइक पुट डेटा और अनदर नेम, you can give another name, display. In that, just print hour and minute, cout /n is for new line, but you have to write in double inverted comma /n. Then variable r, now double inverted comma में r and minute, so double inverted comma में minutes, like 5 hours and 30 minutes ऐसा डिस्प्ले होगा, राइट? डिस्प्ले फंक्शन तो हम ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, कॉल करेंगे. डिस्प्ले फंक्शन तो कैसे कॉल करेंगे? t1 डॉट डिस्प्ले. नाउ हियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट t1 जो है वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसलिए t1 ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन पे आवर्स एंड मिनट पे जो स्टोर होगा वही डिस्प्ले होगा. इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा? t1 डॉट आवर्स एंड t1 डॉट मिनट. बट ऑब्वियसली t1 ऑब्जेक्ट कॉल करे तो यहाँ पे
आवर्स और मिनट के आगे हमें लिखना ज़रूरी नहीं है t1 डॉट आवर्स एंड t1 डॉट मिनट, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट t1 के ही आवर्स और t1 के ही मिनट होंगे। क्लियर? नाउ लेट अस डिफाइन थर्ड फंक्शन। नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑल द फंक्शन इन क्लास ओनली, ठीक है। अगर आउटसाइड द क्लास लिखना है तो यू कैन राइट इट यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नाउ void sum, ओके। नाउ यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑनलाइन क्लासेस पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, दो ऑब्जेक्ट का सम करना है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पास करेंगे t2, क्योंकि t1 ऑब्जेक्ट से जो हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो t1 ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पास होगा, यहाँ पे पैरामीटर में पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो सम कैसे करेंगे? सम करने के लिए, आंसर स्टोर करने के लिए temporary object is created, that is t3 within the function, and that hold the return value. That value hold total number of hours and total number of minute of both the object. Now t3 dot r equal to t1 dot r, but t1 जो है फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हम सिर्फ लिखेंगे r, and then second one is t2 dot r, राइट। एंड वैसे ही क्या करेंगे? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट का एडिशन करना है, लाइक t3 डॉट मिनट इक्वल टू t1 डॉट मिनट, दैट इज मिनट प्लस t2 डॉट मिनट, राइट। t2 ऑब्जेक्ट की मिनट। नाउ t2 ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, लेट अस डिक्लेयर t2 ऑब्जेक्ट एंड t1 डॉट गेट डेटा से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, लाइक 3 आवर्स एंड 30 मिनट, राइट। एंड सॉरी t2 डॉट गेट डेटा आएगा एंड t2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ t2 ऑब्जेक्ट इन आवर्स एंड मिनट, राइट। नाउ यहाँ पे t1 और t2 का जो सम है स्टोर किया है t3 ऑब्जेक्ट में। नाउ यहाँ पे एक इशू है, लाइक t3 में t3 डॉट मिनट की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट प्लस t2 डॉट मिनट, इट मीन्स 40 मिनट प्लस 30 मिनट, दैट इज t3 डॉट मिनट में वैल्यू क्या आएगी? 70 मिनट। लेकिन 70 मिनट की जगह पे हमें क्या लिखना है? 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, राइट। तो अब 70 मिनट को आवर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट t3 डॉट r इक्वल टू t3 डॉट मिनट डिवाइड बाय 60, राइट। पर्टिकुलर 60 मिनट जो t3 डॉट मिनट में कितनी मिनट है? 70 मिनट है, राइट। वो 70 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो r होगा, और आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। t3 डॉट r में आंसर क्या आएगा? 1। सो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर हमने निकाल दिया है। अब बची कितनी मिनट? 10 मिनट है, तो उसको लिखने के लिए t3 डॉट मिनट, नाउ t3 डॉट मिनट में अभी 70 है लेकिन हमें 10 स्टोर करना है, तो t3 डॉट मिनट इक्वल टू t3 डॉट मिनट मोड 60, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो t3 डॉट मिनट में स्टोर होगा। तो t3 डॉट मिनट में क्या स्टोर होगा? अभी 10, राइट। तो मिनट में 10 आ गया, लेकिन आवर में भी अभी 1 आवर कम है, लाइक t1 का आवर और t2 का आवर, इट मीन्स 5 प्लस 3, तो 8 आवर ही है। अभी 1 आवर जो हमने मिनट में से निकाला है वो लिखना बाकी है, सो वो ऐड करने के लिए t3 डॉट r प्लस r एंड मतलब t1 का आवर्स एंड t2 का आवर्स, राइट। और एंड में हमें ये t3 जो टेम्पररी वेरिएबल है जो t3 वो उसको रिटर्न करना है t3, राइट। अगर रिटर्न कर रहे हैं तो void की जगह पे हमें अब क्या लिखना पड़ेगा? टाइम t3, राइट। नाउ अगर ये फंक्शन जो है हमने आउट ऑफ द क्लास लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा इन दिस वे। ये कॉपी कर लेते हैं हम, सॉरी कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट,
लेकिन ये जो है वो डिक्लेयर करना है यहाँ पे, तो हमने डिक्लेयर भी कर लिया है। यहाँ पे एक बार डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ये, लाइक टाइम सम इन ब्रैकेट टाइम T2। नाउ डेफिनेशन लिखेंगे आउट ऑफ द क्लास, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये रिटर्न टाइप जो हमने टाइम लिखा, अब कौन से क्लास से बिलोंग करता है, वो कौन सा क्लास है, टाइम ही क्लास है, ठीक है, विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो डेफिनेशन आउट ऑफ द क्लास हम ऐसे लिखेंगे। नाउ सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, तो कैसे करेंगे, लाइक T3 ऑब्जेक्ट, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बना लेते हैं। T3 इक्वल टू T1 डॉट सम, T1 जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है, इसलिए T1 की वैल्यू सारी बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी और T2 जो है वो एक्सप्लिसिटली पास होगा, राइट। देन वी कैन कॉल T3 डॉट display function, it will display the final value, and then get ch return 0. Now let us compile, one error. Okay, now declaration terminate incorrectly, matlab we have to write semicolon at the end of the function. Now save it and again compile it. No error, zero warning, zero errors, right. Now run it, 5 hours 40 minutes, and second object 3 hours and 30 minutes, right. So answer is 9 hours and 10 minutes, right. Understood? So this is the program of object as function, argument and returning object. Now this is most important question, आपको कंपलसरी ये प्रोग्राम आना चाहिए, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में कैसे पास करते हैं और रिटर्न कैसे करते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने करवाया है, ये भी आपको करना है, असाइनमेंट में भी लिखना है, राइट। Clear? Hope you understand today. If you have any query regarding this, you can message me. Thank you.